नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ द स्टेट मिनिस्टर्स की। Now before starting this lecture, a small announcement for all of you that Unacademy's mega subscription offer is valid till April 28th of 2021. In this offer, you will get an extended subscription on your Plus plan. If you take a 1-year subscription plan on Unacademy in UPSC category, your plan will be valid till July 31st, 2022 or prelims 2022, whichever is later. Suppose the prelims 2022 is conducted in June, plan will be extended till 31st of July 2022, but if prelims is postponed for some reason, your plan will be valid till your prelims. Same applies to 2-year subscription plan as well. This offer is valid till April 28, 2021. The links of all new batches have been provided in the description box of this lecture, so make sure you subscribe today. Use code ARPITA10 ARPITA10 to get 10% discount on your Plus subscription today. Plus, new batches for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 aspirants have started from 21st of April. Under the guidance of India's best educators for UPSC CSE, the Crack UPSC CSE prelims through 3500 MCQ has also started from 21st of April. 1-year batch, the ultimate 1-year batch course for GS UPSC 2022 has started, both in English as well as bilingual languages. The 2-year batches plus the NCERT batches have also started. The link is given in the description box. You just need to use the code ARPITA10 and get 10% extra off. So today we'll be talking about the Chief Minister and the Council of Ministers. Now the question comes that who is called a Chief Minister? देखिए, he is the head of the government in the state, while the governor is the nominal executive of the state government. As I told you in the previous lecture, the person who becomes the chief minister is the real executive. कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए मैच द फॉलोइंग के टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट में कंफ्यूज करा जाता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. द रियल एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी कि in fact whether by right or not. Now how is a chief minister appointed? देखिए, just like the case of prime minister, provisions of whose appointment are not mentioned in the Indian constitution, CM का भी जो appointment के जो particulars होते हैं they are also not mentioned in the constitution. However, according to article 164 in the Indian constitution, governor appoints chief minister. However, the governor cannot appoint any random person as a chief minister but has to follow a provision. A leader of the party that has got the majority of the votes in the assembly election is appointed as the chief minister of the state. जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले इलेक्शंस में, then the governor can exercise his own discretion and appoint a chief minister accordingly as well. इन केस वेयर नो पार्टी हैज़ वॉन द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जो कि कई बार होता है, स्पेशली अगर आप देखेंगे कि साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा दैट नो पार्टी हैज़ वॉन द मेजॉरिटी वोट्स, द गवर्नर अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और वन फ्रॉम द कोलिशन, अगर ऐसा होता है, एज द चीफ मिनिस्टर, एंड देन ही इज़ गिवन 1 month टाइम टू प्रूव द कॉन्फिडेंस इन द हाउस. ये जो कॉन्फिडेंस का जो ड्यूरेशन है, यू नीड टू रिमेंबर कि 1 महीना है, केवल 1 महीना. If the incumbent dies in the office, governor at his own discretion can appoint a chief minister. However, the ruling party nominates a member and the governor usually appoints that person as the chief minister. आप यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नर का जो रोल है वो बहुत से ज़्यादा है in selecting the chief minister, and because of the reason कि nominal executive बोला जाता है गवर्नर को, and the real executive comes with the name of the chief minister. This person then has to prove confidence within a specified time, and a person not belonging to either house, यानी कि जो legislative assembly या council दोनों से ना हो, can also be appointed as a CM or the chief minister. लेकिन जो महीना है, जो 6 months का जो ड्यूरेशन है, within 6 months of his tenure as a CM, he should be elected to either house without which he ceases to be a CM. सो यू नीड टू रिमेंबर, आपको 1 महीने का जो ड्यूरेशन है या जो 6 महीने का जो ड्यूरेशन है, 1 month और 6 month, द क्वेश्चन विल बी कमिंग, वो आपको एग्जामिनर इसी से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा. एंड यू शुड रिमेंबर
कि 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो गवर्नर का कोलिशन और मेजॉरिटी वोट से रिलेटेड टाइम पीरियड है, एंड जो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो ये है दैट द सीएम शुड बी विद इन 6 मंथ्स ऑफ हिज टेन्योर बी इलेक्टेड फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउस, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली से या काउंसिल से। तो आपको 1 मंथ और 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में कंफ्यूज नहीं होना है। एंड चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर। उस स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस से, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, और ये बहुत ही ग्रे जोन है। हाउ? देखिए, द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो टर्म है चीफ मिनिस्टर का ये फिक्स नहीं है। आप इसको आप बोलेंगे कि 5 ईयर्स में जो इलेक्शन होता है फिर उसको हम कैसे देखें? देखिए, इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में होगा, एंड इफ द सीएम पार्टी स्टेज इन पावर ही और शी नेवर लीव्स द ऑफिस टेक्निकली, गोइंग ऑन एज इफ नथिंग हैज चेंज। लेकिन यू नीड टू रिमेंबर कि टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, हाउएवर हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि अगर वो अपने कॉन्फिडेंस को दिखा पाते हैं तो वो कभी ऑफिस से जाएंगे ही नहीं, यानी कि सीएम का जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर कैन नॉट रिमूव him anytime, and governor can not even dismiss him till the time he enjoys the support of the majority of the house. You need to remember this thing. तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है कि टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, एंड सीएम को अपना वहाँ पर जो मेजॉरिटी है, जो सपोर्ट है, उसे दिखाना होगा, और जब तक वो दिखाते रहते हैं वो पीरियड के लिए चीफ मिनिस्टर की पद पर रह सकते हैं, बट टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। When CM loses his majority support, he has to resign and governor dismisses him then. ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी कि जो टर्म है चीफ मिनिस्टर की, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, हाउएवर इलेक्शन टेक्स प्लेस हर 5 साल में, क्योंकि सीएम को अपना जो मेजॉरिटी का जो सपोर्ट ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस को शो करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीफ मिनिस्टर चले जाएंगे। इसलिए आप देखते हैं बंगाल में चुनाव होते हैं, इसलिए आप देखेंगे यूपी में चुनाव होते हैं, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर यही प्रिंसिपल है कि जो सीएम का जो पद है उसका कोई भी जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, लेकिन इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, क्योंकि जो सीएम कैंडिडेट हैं सीएम के पद पर, उनको अपने आप को प्रूव करना होगा कि उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द हाउस है, और ये जो टाइम पीरियड है 5 साल का है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, इलेक्शन 5 साल में होना और सीएम के पद का एक टर्म फिक्स ना होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर? देखिए, द सीएम ऑफ द स्टेट परफॉर्म्स फंक्शंस इन रिलेशन टू द डिफरेंट कैटेगरीज। एक हो सकता है इन रिलेशन टू द COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर दूसरा है इन रिलेशन टू द गवर्नर, देन इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अदर देन दैट सर्टेन फंक्शंस दैट आर फॉलोड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। द फर्स्ट वन इज कि वो जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है उसके चेयरपर्सन रहते हैं, उसे चेयर करते हैं। ही इज ऑल्सो द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द कंसर्न्ड जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, होल्डिंग दैट ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड ही इज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, विच आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको कई बार पूछा जाता है कि हु इज द मेंबर आउट ऑफ दिस इंटर स्टेट काउंसिल में, आपको दे दी जाता है मैच द फॉलोइंग में, या NDC में दिया जाता है, तो उनको हेड करेंगे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर, PM, लेकिन उनके मेंबर CM भी होंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नाउ विल बी स्टडिंग की फंक्शंस जो हैं इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू द गवर्नर, इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, किस तरीके से CM के हैं। देखिए, इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द CM recommends to the governor on who to appoint as ministers. The second is he designates or reshuffle the portfolios of the minister। यानी कि अगर मान लीजिए कोई जो पोर्टफोलियोज हैं मिनिस्टर्स के स्टेट लेजिस्लेचर में, उनको भी रीशफलिंग जो है, उनकी डेजिग्नेशन या रीशफलिंग भी चीफ मिनिस्टर करते हैं। ही कैन ऑल्सो आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन। Meeting of the Council of Minister is headed by him as well, and all activities of the ministers are guided and controlled by the CM। अगर CM रिज़ाइन दे देते हैं तो कंप्लीट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो नहीं रहेगा एग्जिस्टेंस में, कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वो रिज़ाइन दे देते हैं, या किसी की अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में डेथ हो जाती है या CM ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे केस में भी जो काउंसिल है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ इन द रिलेशन टू द गवर्नर, all the activities decisions that are taken by the council of ministers are communicated to the governor by the chief minister।
to report to the governor information about the administrative affairs if and when asked by the governor as well. The third one is, अगर कोई भी minister has decided on any issue, the same has to be reported to the governor by the chief minister when the same has not been considered by the council. और इसी में आप देखेंगे कि कई बार डिस्प्यूट भी अराइज होता है, जो हम न्यूज़पेपर में कई बार देखते हैं न्यूज़ के रूप में, जो डिस्प्यूट दिखता है बिटवीन द चीफ मिनिस्टर. ही ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. देखिए चीफ मिनिस्टर जो हैं, जब वो गवर्नर को एडवाइस देते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, या जो आपके चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के. फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी पीएससी अगर हो जाता है, हर स्टेट का अपना खुद का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके जो चेयरमैन हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम. नाउ इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, the CM is the leader of the house and holding this position he performs the functions. पहला है, before a governor prorogue or summons the session of the state legislature, the chief minister advises must. बगैर एडवाइस के ऐसा नहीं हो सकता कि जो गवर्नर है वो प्रोरोग या समन कर दे सेशंस को. एंड द सेकंड वन इज द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम ऑन हिज रिकमेंडेशन टू द गवर्नर. आप यहाँ देखेंगे कि रिकमेंडेशंस का होना और प्रोरोग और समन करना गवर्नर का, दोनों ही चीफ मिनिस्टर की एडवाइस और रिकमेंडेशन के बाद ही होगा. प्लस ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल. नाउ देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. पहला आर्टिकल है आर्टिकल 163. द गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. यू नीड टू नोट दिस थिंग डाउन दैट जब भी गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट करेंगे वो काउंसिल के एडवाइस को नहीं लेंगे. कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है और जो एडवाइस है क्या वो दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है. व्हेन गवर्नर हैज़ टू एक्ट एज इट at his own discretion, then no advice is needed by the council or the chief minister. Now article 164 ये कहता है that governor appoints CM and later CM recommends governor on the appointment of the ministers. यानी कि पहले गवर्नर CM को अपॉइंट करेंगे और फिर CM जो हैं वो गवर्नर को बताएंगे अपनी जो अभी उनकी अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें रिकमेंड करेंगे और पूरे COM को बैठाएंगे. 167 जो है आर्टिकल वो बात करता है चीफ मिनिस्टर हैज़ टू कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दैट आर टेकन अप बाय हिम एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर. सो दीज ऑल आर्टिकल्स यू नीड टू रिमेंबर कि 163 का कौन सा आर्टिकल है, 164 एंड 167, बिकॉज कई बार फैक्चुअल केस में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है. 164 को 163 के प्रोविजन से अटैच कर दिया जाएगा और 167 को 164 को एंड वाइस वर्सा, एंड इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कई बार कन्फ्यूजन होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर. Now, who are State Council of Ministers? State Council of Minister is similar जैसे आपका Central Council of Minister होता है, जिसको हम नॉर्मल लेमन टर्म्स में कई बार COM या Council of Ministers भी बोलते हैं. The State Council is headed by the Chief Minister, as I told you earlier. The Council comprises ministers appointed by the Governor on the recommendation of the CM. और जो आपका CM प्लस Council of Ministers हैं, यही आपके रियल एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट के. गवर्नर तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं. दे एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, लेकिन ऐसी एडवाइस जो है ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नर के ऊपर. ऑन द अदर हैंड कुछ केसेस में, कुछ प्रोविजंस में हम देखते हैं दैट दे आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. 42nd अमेंडमेंट डिडंट मेक इट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर एज इट डिड टू द प्रेसिडेंट. यू नीड टू रिमेंबर, आपको 42nd अमेंडमेंट जब आया उसमें जो एडवाइसेस हैं ये बाइंडिंग थी ऑन द प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया दो एक फेडरेशन है, एक फेडरल स्टेट है, लेकिन एक क्वाजी फेडरल स्टेट है जिसमें यूनिटरी टिल्ट है. और उसी यूनिटरी टिल्ट को बनाए रखने के लिए गवर्नर की पोजीशन हमें इस तरीके से चाहिए थी स्टेट लेजिस्लेचर में और स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में कि वो जो मैकेनिज्म है उसमें से यूनिटरी टिल्ट डिस्ट्रॉय ना हो. इसलिए आप देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट के बाद भी गवर्नर से जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं रखी गई. Governor has been given discretionary power to no court shall inquire into the advice given by the council of minister to the governor. The council shall always be there to aid and advise the governor. Hence, even if the legislative assembly is dissolved or the council has been resigned, still they have to continue in office till their successors are assuming charge. इसलिए आप देखेंगे कि कई बार अगर डिसॉल्व हो जाता है या फिर काउंसिल ने रिज़ाइन दे दिया उसके बाद भी वो अपने चार्ज को कम्प्लीटली एज्यूम करते हैं.
अब टोटल स्ट्रेंथ जो सीएम की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस एज सेड हैज बीन सेड अंडर द आर्टिकल अंडर 91st अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन वो 12 से कम भी नहीं हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है. द पर्सन हु हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन shall also be disqualified to be appointed as the CM or the minister. This is also under the 91st amendment. आपको यहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट असेंबली. नाउ व्हाट इज दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिस मीन्स दैट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ टीम, जो कि या तो एक साथ सिंक करेगी या एक साथ स्विम करेगी. सो इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन उन सभी को अपना जो है रिजाइन करना होगा. एंड ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इट कैन नॉट बी अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर बट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली. इसलिए कई बार ये भी बोला जाता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. अ मिनिस्टर who is not a member of any house consecutively 6 महीने के लिए जो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है shall cease to be the minister, and a minister can take part in proceeding of both the house as he is member of the government but can vote only in the house of which he is a member. कई बार ऐसा भी होता है that a member of any house disqualified on grounds of defection shall be disqualified from becoming a minister too. So you need to remember this last point as well. नो व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर? देखिए, 3 तरीके की कैटेगरीज होती हैं काउंसिल में मिनिस्टर्स की. पहले हैं कैबिनेट. दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेट गवर्नमेंट. देन वी हैव द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. दे कैन बी इंडिपेंडेंट इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट दैट आर नॉट अटैच टू कैबिनेट मिनिस्ट्रीज or in charge of specific department, part of a ministry or specific work in a ministry which is headed by a cabinet minister. And then we have the deputy ministers. They are attached to cabinet ministers or ministers of state and assist them in work. तो आप यहाँ पर एक पिरामिडल हायरार्की देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स में. Now there are certain provisions and articles that you need to remember. 163, Article 163, that is the Council of Ministers to aid and advise governor. Article 164, other provisions as to ministers. Article 166, conduct of business of the government of a state. And Article 167, duties of a chief minister as respects the furnishing of information to governor. This was all for today. Stay safe and thank you.